Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, electricity and circuits. Learning objectives, electric current, sources of electricity, electric cell, electric bulb, electric circuit, electric fuse, electric torch, conductors and insulators, electric shock and safety. We use electric energy in our life for various needs. Electric bulbs, fans, electric iron box, washing machines and refrigerators are some of the appliances which work with the help of electricity. Every day, we use electricity to operate many appliances at home and in our workplaces. We switch on the television and radio. We use fans, air conditioners, ovens and tube lights. All these appliances use electrical energy. There is no factory or industry that can run without electricity. Electricity has a vital role to play in the modern society. देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपनी वेरियस नीड्स के लिए, जैसे बल्ब्स है, एसीज है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, राइट? जितने भी हमारे घरों में बहुत सारे अप्लाइंसेज है जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, ओके? एंड कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री ऐसे नहीं है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चले. तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही वाइटल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द मॉडर्न सोसाइटी. इलेक्ट्रिक करंट. All things we use in our life are made up of elements. Each element is made up of atoms, which is the smallest unit. John Dalton, the scientist, considered that atoms cannot be divided further. But it was found out later through Rutherford's gold foil experiment that atoms are made up of particles like proton, electron and neutron. Movement of electrons in a material constitutes electric current and generates an energy called electric energy or electricity. अच्छा, हम अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारे एलिमेंट से बने हैं. हर एलिमेंट जो है एटम्स में बना है, जो एटम एक्चुअली स्मॉलेस्ट यूनिट है, राइट? तो इसको एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने कंसिडर किया था कि एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. बट लेटर जब रदरफोर्ड की गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आया तो उनके अकॉर्डिंग एटम जो है वो कुछ पार्टिकल से बने हैं जो हैं आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. तो जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का इन अ मटेरियल वो इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक एनर्जी जनरेट करते हैं जिसे इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन पावर स्टेशंस. Burning of coal, wind, moving water and sunlight are some sources of energy used for producing electricity in thermal, hydro and nuclear power stations. तो देखिए जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी. ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो पावर स्टेशंस में आपके प्रोड्यूस होती है. अब आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कोल के बर्न से या विंड से या मूविंग वाटर से, राइट? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन power plants is transported to our homes, schools and markets with the help of wires and electric cables. Electricity is also produced by reaction of certain chemicals such as in cells and batteries, which is used in different applications. अब देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स में आपके जनरेट होती है उसको फिर हमारे घर, स्कूल, मार्केट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू वायर्स एंड इलेक्ट्रिक केबल्स. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सर्टेन केमिकल्स के रिएक्शन से भी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि आपके सेल्स या बैटरीज में है जिनको हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल वाज इन्वेंटेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट Alessandro Volta in the year 1800. It is the most convenient source of electricity. अच्छा, इलेक्ट्रिक सेल को इन्वेंट किया था एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था Alessandro Volta 1800 में. तो ये बहुत ही कन्वीनियंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. इट प्रोवाइड्स पावर टू स्मॉल अप्लायंसेस सच एज टॉर्च, रिमोट कंट्रोल, क्लॉक, रिस्ट वॉच, calculator and so on. An electric cell changes chemical energy into electrical energy. This means that cells are made up of chemicals. The energy stored in these chemicals is used to produce electric current. Electric cells and batteries come in various shapes and sizes. They are of different types. Let us study different types of electric cells. अब ये देखिए इलेक्ट्रिक सेल्स जो हैं आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर में, रिस्ट वॉच में, आपके रिमोट कंट्रोल में, क्लॉक्स में, राइट? तो आपकी क्या होती है जो एनर्जी इसमें स्टोर्ड होती है, इनके अंदर केमिकल्स होते हैं और ये स्टोर्ड होते हैं, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं. अब इलेक्ट्रिक सेल्स या बैटरीज है वो आपके डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में आती हैं. ड्राई सेल. The electric cell that we generally use is called the dry cell. It is a small, portable and very useful device. Button cells and solar cells are some examples of electric cells. Dry cells come in various shapes and sizes, but they all are made up of same internal design.
इलेक्ट्रिक सेल जिन्हें हम जनरली ड्राई सेल भी कहते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, बहुत ही यूजफुल डिवाइस होते हैं. बटन सेल, सोलर सेल्स आपके कुछ एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिक सेल्स के. तो ये ड्राई सेल्स जो है वेरियस शेप एंड साइजेस में आते हैं, बट ये इनका जो इंटरनल डिज़ाइन होता है सेम होता है. Structure of a dry cell. A dry cell is generally cylindrical in shape. The outer body is made up of zinc container. It is the center of the zinc container. There is a solid rod made of carbon. The carbon rod is covered by a powder mixture of manganese dioxide and carbon. The powder is filled in a small muslin bag, and the muslin bag is placed inside a zinc container. The space around the muslin bag is filled with a thick paste of another chemical called ammonium chloride and gelatin. The zinc container is placed in a leak-proof cover made of cardboard. The zinc container acts as a negative terminal and the carbon rod as a positive terminal. A brass cap is mounted on the carbon rod. ड्राई सेल आपका जनरली सिलेंड्रिकल शेप में होता है. देखिए आपको दिखाएगा, और आपने जनरली आपके जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में ही होते हैं जो आप देखेंगे. आउटर बॉडी जो है वो एक जिंक कंटेनर से बनी होती है. इसके सेंटर में होता है जिंक कंटेनर के एक सॉलिड रॉड होता है जो कार्बन से बना होता है. कार्बन रॉड एक कवर्ड होता है एक पाउडर से जो है मिक्सचर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और MnO2 एंड कार्बन. फिर जो पाउडर है इसको फिल किया जाता है एक छोटे से स्मॉल मसलिन बैग में. मसलिन बैग को प्लेस किया जाता है इस कंटेनर के अंदर जो जिंक कंटेनर है. एंड जो शेप होता है मसलिन बैग के अराउंड उसको फिल किया जाता है थिक पेस्ट से जो दूसरा केमिकल है अमोनियम क्लोराइड एंड जिलेटिन. जिंक कंटेनर को फिर एक लीक प्रूफ कवर में प्लेस किया जाता है जो कि आपका कार्डबोर्ड से बना होता है. फिर जिंक कंटेनर जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करता है, जो कार्बन रॉड है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं. ब्रास कैप को कार्बन रॉड के टॉप पे माउंट किया जाता है. Working of a dry cell. In a dry cell, there is a plus or a positive sign at one end and minus or negative sign at the other end. These are its terminals. The negative terminal of the cell contains a zinc container. The metal cap which is fitted on the positive end is connected to a carbon rod. It is only when the terminals are connected through a wire that electric current flows from the positive terminal to the negative. This kind of cell is also called a primary cell. In a primary cell, the chemical reaction that converts the chemical energy into electrical energy is irreversible. The dry cell produces electric current till whole of the chemical inside it is not finished. Once the chemical is finished, the cell is said to be dead. A dry cell usually produces 1.5 volts of current, which is not very high. To get more electricity, many cells are connected end to end. Two or more cells connected together is called a battery. In a battery, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of another cell. ड्राई सेल में देखिए पॉजिटिव साइन होता है जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जहाँ पे आपका नेगेटिव साइन होता है यानी माइनस साइन होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल्स होता है. ठीक है, तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है सेल का उसमें जिंक कंटेनर होता है. मेटल कैप जो कि फिट होती है वो पॉजिटिव एंड होती है, ये कनेक्टेड होती है आपके कार्बन रॉड के साथ. एंड ये इट इज़ ओनली ये जो टर्मिनल्स आपके कनेक्टेड होते हैं वायर के थ्रू, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव में. तो इस तरह का जो सेल है इसे प्राइमरी सेल कहते हैं. प्राइमरी सेल में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. ओके, और ये इरिवर्सिबल है. तो जो ड्राई सेल है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं कब तक, जब तक कि केमिकल उनके अंदर जितना भी हो फिनिश ना हो जाए, और केमिकल फिनिश हो गया तो सेल मतलब डेड है. एक ड्राई सेल यूजुअली 1.5 वोल्ट ऑफ करंट प्रोड्यूस करता है जो हाई नहीं होता. अगर हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हम बहुत सारे सेल्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं. जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स कनेक्टेड होते हैं तो उसे कहते हैं बैटरी. तो बैटरी में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक सेल का, वो कनेक्टेड होता है नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल का. Secondary cells. Secondary cells are also called rechargeable cells. Once the chemicals inside the cells are used, they can be recharged using electricity and they can be reused. Such cells are commonly used in laptops, car batteries, mobile phones, cameras, etc. Secondary cells आपके rechargeable cells होते हैं, यानी कि इनके अंदर का अगर केमिकल खत्म हो गया तो इनको रिचार्ज किया जा सकता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज करते हैं, लैपटॉप्स को चार्ज करते हैं, कैमरास को चार्ज करते हैं, कार बैटरीज हैं. सोलर सेल्स. सोलर सेल्स आर यूज्ड इन calculators, satellites, telescope, etc. These cells use sunlight. This means they convert solar energy into electric energy. Electricity generated by a single solar cell is very small, so a number of solar cells are connected together to form a solar panel. Solar panels are usually built on the roofs of tall buildings and large open areas so that maximum sunlight falls on them. They work in the following manner. सोलर सेल्स को आपके कैलकुलेटर, सैटेलाइट, टेलीस्कोप्स में यूज़ किया जाता है. ये सनलाइट का यूज़ करते हैं.
ओके इसका मतलब ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एक सिंगल सोलर सेल से जो बहुत ही स्मॉल होता है, तो इसीलिए नंबर ऑफ सोलर सेल्स को कनेक्ट किया जाता है जिससे कि एक सोलर पैनल बनता है। और सोलर पैनल जनरली बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है लंबी लंबी या लार्ज ओपन एरियाज में होता है, वहाँ पे इनको इंस्टॉल किया जाता है ताकि जो मैक्सिमम सनलाइट उनमें पड़ सके। Solar panels trap sunlight and convert it into electricity. A control box changes this electricity into usable form to power various devices. अच्छा देखिए, अब सोलर पैनल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। एक कंट्रोल बॉक्स होता है, वो इस इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करता है यूजेबल फॉर्म में, जिससे कि वे बहुत सारे डिवाइसेस को पावर किया जाता है। A breaker transmits this electricity to the outlets in the building. Various electrical devices are plugged in the outlets for power supply. एक ब्रेकर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करता है बिल्डिंग के आउटलेट्स तक, एंड जो वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वो प्लग किए जाते हैं आउटलेट्स में फॉर पावर सप्लाई। Nowadays, solar cells are widely used in appliances such as solar cookers, solar water heaters, solar lamps, and solar calculators, and in operating traffic signals and artificial satellites. It is a pollution-free source of electricity. अब आजकल सोलर सेल्स जो है हर जगह यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे अप्लाइंसेस में, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये pollution free source of electricity है। Electric bulb. An electric bulb is a device which gives light when electricity is passed through its terminal. The bulb is a transparent glass case attached to a metal base. The thin wire, either coiled or straight, in the center is called the filament, which is made of tungsten. इलेक्ट्रिक बल्ब एक डिवाइस होता है जो आपको लाइट देता है जब इलेक्ट्रिसिटी इसके टर्मिनल से पास होती है। बल्ब आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास केस है जो कि मेटल बेस के साथ अटैच होता है। देखिए, दिस इज द मेटल बेस, एंड आपका या तो थिन वायर, आपकी एक पतली सी वायर होती है, कॉइल्ड हो या स्ट्रेट हो, इसके सेंटर में होती है जिसे कहते हैं फिलामेंट, एंड ये जो फिलामेंट होता है ये बना होता है आपका टंगस्टन से। The filament is enclosed in a glass case which is filled with a mixture of inert gases such as argon 80% and neon 20%, which does not support combustion or burning. The mixture of inert gases saves the filament from burning out and minimizes the blackening of the glass. The two wires to which the ends of filament are attached do not touch each other. One of the wires is joined to the metal base tip of the bulb. The other wire is joined to the metal case at the center of the bulb. In some bulbs, both the wires are connected to two different metal pieces at the base of the bulb. The metal case and the metal tip are the two terminals of the bulb. The light is produced when the tungsten filament gets too heated by passing current through the terminals. अब देखिए, जो फिलामेंट है ये इनक्लोज होता है ग्लास केस में जो कि फिल्ड होता है, एक मिक्सचर होता है गैसेस का, आपका आर्गन एंड नियॉन का, जो कि कंबशन बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता। तो इन गैसेस के मिक्सचर की वजह से क्या होता है कि जो फिलामेंट है वो बर्निंग से बच जाता है, एंड फिर ये जो ग्लास का ब्लैकनिंग नहीं होता वो मिनिमाइज हो जाता है। जो दो वायर्स होती हैं जिसमें आपके जो फिलामेंट की एंड्स होती है अटैच होती है वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। एक जो वायर्स होती है वो जॉइंट, वन ऑफ द वायर्स जो होते हैं एक जॉइंट होती है मेटल बेस के साथ टिप ऑफ द बल्ब, ओके, एंड जो दूसरी वायर है वो जॉइंट होती है मेटल केस के साथ एट द सेंटर ऑफ द बल्ब। कुछ बल्ब्स में वायर्स जो होती है वो कनेक्टेड होती है दो डिफरेंट मेटल पीसेस से बल्ब के बेस में। मेटल केस एंड द मेटल टिप जो है ये दो टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के। लाइट प्रोड्यूस कब होती है? जब टंगस्टन फिलामेंट्स बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होता है। Working of an electric bulb. The filament of the electric bulb is enclosed in a glass casing filled with inert gases such as argon, neon, and hydrogen. When the positive terminal of the bulb is connected to the positive terminal of a cell and the negative terminal of the bulb is connected to the negative terminal of the cell, an electric current flows through the filament of the bulb. When electric current passes through the filament, it becomes hot and starts glowing. If the filament of the bulb is broken, it will not glow. तो जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो इनक्लोज होता है आपके ग्लास केस में जिसमें आपके इनर्ट गैसेस होती हैं जैसे कि आर्गन, नियॉन और हाइड्रोजन। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बल्ब का वो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल, और जो नेगेटिव टर्मिनल है बल्ब का वो कनेक्टेड होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा फिलामेंट के थ्रू, ओके, एंड जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा फिलामेंट में तो वो हॉट होगा एंड देन इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। और अगर फिलामेंट बल्ब का ब्रोकन है तो वो ग्लो नहीं करेगा। Do you know the electric bulbs are also called incandescent filament lamps because they produce light due to heating of the filament. Tube lights are called fluorescent tubes because they produce light by exciting atoms of the gas filled inside them.
there is a compact fluorescent lamp CFL which consumes less electricity and produce light of better quality. इलेक्ट्रिक बल्ब्स को इनकैंडेसेंट फिलामेंट बल्ब्स या लैम्प्स कहा जाता है क्योंकि ये लाइट को प्रोड्यूस करते हैं जब फिलामेंट आपका हीट हो जाता है. ट्यूब लाइट्स को फ्लोरेसेंट ट्यूब कहा जाता है क्योंकि ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्साइटिंग एटम्स ऑफ द गैस जो उनके अंदर फिल्ड होती है. और एक CFL भी होते हैं आपके कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प जो कि लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और बेटर क्वालिटी की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. एक्टिविटी 1. Connecting bulb to an electric cell. Take the connecting wires and expose metal wires at both the ends by removing their plastic coverings. Connect these wires to the terminal of the bulb carefully. आपको क्या करना है, जो connecting वायर्स लेनी एंड मेटल वायर्स को एक्सपोज करना है दोनों एंड्स पे, उनके मतलब प्लास्टिक कवरिंग को आपने हटा देना है. फिर आपने इन वायर्स को कनेक्ट करना है बल्ब के टर्मिनल्स पे बट केयरफुली. नाउ जॉइन these wires to the cell in different combinations as shown in the figure. और उसके बाद आपने क्या करना है, इन वायर्स को आपने कनेक्ट करना है सेल्स के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जैसे कि फिगर में दिखाया गया है. यू मे यूज इलेक्ट्रिशियंस टेप फॉर मेकिंग द कनेक्शन. ऑब्जर्व इन विच कॉम्बिनेशन बल्ब ग्लोज. आप इलेक्ट्रिशियन टेप का भी यूज कर सकते हैं इस कनेक्शन को बनाने के लिए एंड देन यू विल ऑब्जर्व कि कौन से कॉम्बिनेशन में बल्ब ग्लो करता है. When we join the bulb to the opposite terminal of the cell, it glows, but it does not glow on joining its two terminals together to either of the terminal of the cell. This is because when we join the two wires on the same terminal of the cell, the path is not completed and hence the current from the cell does not flow. The bulb does not glow if the path between the cell and the bulb breaks up, disturbing the flow of current. अच्छा देखिए, जब हम बल्ब को ज्वाइन करेंगे और जो ऑपोजिट टर्मिनल्स ऑफ के सेल में तो वो ग्लो करेगा, बट ये ग्लो नहीं करेगा अगर हम इसके दोनों टर्मिनल्स को क्या करेंगे, साथ में ज्वाइन करेंगे जो टर्मिनल ऑफ द सेल है उसके एक साथ. ऐसा इसलिए होता है कि जब हम दो वायर्स को ज्वाइन करते हैं सेम टर्मिनल ऑफ द सेल में तो पाथ कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इसीलिए जो करंट है सेल से वो फ्लो नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा. और अगर जो पाथ है सेल एंड बल्ब के बीच का वो ब्रेक हो गया है जिससे कि जो फ्लो ऑफ करंट है उसका जो पाथ है वो डिस्टर्ब हो गया है. Electric circuit. A circuit diagram is a simple way of showing an electric circuit using symbols. For example, there are symbols for a cell, a battery, connecting wires, a bulb, and an open switch. The components of electric circuit are represented by specified symbols in a circuit diagram. देखिए सर्किट डायग्राम जब भी हम बनाते हैं तो उसको सिंपल वे में उसको ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ सिंबल्स का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बल्ब बनाना स्टार्ट करेंगे या या हम कोई भी चीज़ बनाना स्टार्ट करेंगे उसके ओरिजिनल फॉर्म में तो बहुत ही कम्बरसम हो जाएगा, इसीलिए हम सर्किट डायग्राम्स का यूज़ करते हैं. देखिए जैसे कि ये सेल का डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, बैटरी, ओपन स्विच, लैम्प, दिस इज एमीटर, लैम्प और बल्ब, एंड दिस इज क्लोज्ड स्विच. The electric current flows through a closed or complete path called an electric circuit. We have learned that electric current flows due to the flow of electrons. These electrons need a medium to travel from one terminal to the other. So electric current flows only when the terminals of an electric cell are connected to each other. The arrangement showing connection of the two terminals of the electric cell is called an electric circuit. In other words, an electric circuit is a closed path along which the electric current flows. तो electric current जो है वो आपका closed या कंप्लीट पाथ में ही फ्लो करता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक आपका जो करंट है फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक मीडियम की ज़रूरत होती है जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जिसके थ्रू ये ट्रैवल करते हैं. सो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है व्हेन जो टर्मिनल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सेल के वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो अरेंजमेंट जिसमें आपके जो शो करता है कनेक्शन ऑफ द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. An electric circuit consists of, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके क्या होता, अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अ सेल और अ बैटरी, अ डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रिक करंट, बल्ब, कनेक्टिंग वायर्स, एंड ऑन ऑफ स्विच और की. ऑन ऑफ स्विच हम की भी बोल सकते हैं टू मेक और ब्रेक द सर्किट. और इसका काम क्या होता है, सर्किट को या तो बनाना या कंप्लीट करना या फिर से ब्रेक करना. Making of an electric circuit. To make a simple electric circuit, first let us connect a small bulb to a cell. Fit a small bulb in a bulb holder. Attach one end of an electric wire to the positive terminal of a cell and hold it in place with some cellophane tape. Attach the other end to one terminal of the bulb holder.
connect one end of another wire to the negative terminal of the cell and other end to the second terminal of the holders as shown in the figure. You will notice that the bulb glows. This indicates that electric current flows from the battery through the wires to the bulb. The path through which electric current flows is called a circuit. तो देखिए सिंपल सर्किट बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्मॉल बल्ब चाहिए होगा. उसको आपको कनेक्ट करना है सेल के साथ. एक स्मॉल बल्ब को आपने फिट करना है बल्ब होल्डर में, जैसे कि आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, राइट. एंड देन आप क्या करेंगे, एक एंड लेंगे इलेक्ट्रिक वायर का, उसको आप क्या करेंगे, अटैच करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इस सेल के साथ. आपने अटैच करना है एंड होल्ड इट इन अ प्लेस विथ सेलोफेन टेप से आप उसको अटैच कर देंगे. अब आपने जो दूसरा एंड है उसको अटैच करना है बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल से. फिर एक एंड है, कनेक्ट करना है वन एंड ऑफ अनदर वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, एंड जो दूसरा एंड होगा सेकेंड टर्मिनल का जो आपका होल्डर में, आप देखेंगे बल्ब ग्लो करेगा. तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, क्या शो करता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बैटरी से थ्रू वायर्स आपका फ्लो हुआ बल्ब तक, एंड जो पाथ आपका बना है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा, दैट इज कॉल्ड अ सर्किट, क्लोज एंड ओपन सर्किट. In an electric circuit, electricity flows from the positive terminal to the negative terminal. देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी है ना आपकी, वो फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. ओके, रिमेंबर दैट. The type of circuit in which the path is closed and complete is called a closed circuit. An incomplete circuit, or when the path of the circuit is not continuous, the current is stopped flowing, then it is known as open circuit. ओके, अब देखिए आपका ओपन सर्किट एंड आपका क्लोज्ड सर्किट क्या है. आप देखिए ये आपका ओपन सर्किट है, राइट, क्योंकि पाथ जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया तो बल्ब ग्लो नहीं किया. सेकंड केस में आपका देखिए ये क्लोज्ड है, राइट, और आपका बल्ब ग्लो कर गया. एक्टिविटी 2, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ लेमन. Take two metal strips and push them into a lemon and ensure that they do not touch each other. Connect the strip to the LED as shown in the figure. Now try this experiment using potato, ginger, tomato and other fruits and compare the electric currents produced by these vegetables fruits. Observe how the LED glows. This is a measure of the electric current produced by the lemon cell. Now see how the LED glows in case of different vegetables and fruits. देखिए दो मेटल स्ट्रिप्स लेनी है और उनको लेमन में पुश करना है, और इस तरह से पुश करना है कि वो एक दूसरे को टच ना करें, जैसे कि आपको दिखाया गया है. एंड देन आपको LED जो है इन स्ट्रिप से आपको कनेक्ट करनी है. आप सेम एक्सपेरिमेंट पोटैटो, जिंजर, टमेटो या किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के साथ आप कर सकते हैं. अब आपने ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से LED ग्लो करता है. ओके, एंड ये आपका क्या है, दिस इज अ मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द लेमन सेल. अब आप देखेंगे कि किस तरह से LED ग्लो करता है डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में. इलेक्ट्रिक स्विच. एन इलेक्ट्रिक स्विच इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इट इज यूज्ड टू क्लोज और ओपन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक स्विच एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है. इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए. इट टर्न्स एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑन एंड ऑफ. ये क्या, इसका काम क्या होता है, किसी भी अप्लायंस को ऑन एंड ऑफ करना. स्विच. व्हेन वी स्विच एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ, द फ्लो ऑफ करंट, electric current in the circuit stops, and when on, the current flows through it. A switch is often referred as the key. अगर हम ऑफ करते हैं स्विच को तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. जब ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा. स्विच को हम की भी बोलते हैं. स्विचेस आर ऑफ मेनी टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस इट इज यूज्ड फॉर. द स्विचेस दैट आर यूज्ड इन होम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड बल्ब्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, बट द डिजाइन्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड. Generally, smaller switches are used for fans, bulbs, and call bells, and power switches are used for devices such as a refrigerator, washing machines, etc. Switches आपके बहुत तरह के होते हैं. ये डिपेंड करता है कि किस डिवाइस के लिए आप इसे यूज़ कर रहे हैं. ओके, जैसे कि जो स्विचेस आप अपने होम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं या जो बल्ब होता है वो सेम प्रिंसिपल पे आपका काम करता है, मतलब क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट में, बट इनका थोड़ा सा डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. स्मॉलर स्विचेस को यूज़ करते हैं फैन या बल्ब्स के लिए, जबकि पावर स्विचेस को यूज़ करते हैं हम जैसे कि रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन्स में. एक्टिविटी 3, मेकिंग अ सिंपल इलेक्ट्रिक स्विच. फिक्स बोथ the drawing pins on a thermocol sheet. The distance between the pins should be less than the length of the hairpin. Connect the bulb terminal to one of the drawing pins with a wire. Connect the other pin with the negative terminal of the battery with another piece of wire. Attach the hairpin to one of the drawing pins such that it can be moved easily. As soon as you touch the hairpin to the other drawing pin, the bulb will light up. The bulb will stop lighting
when you remove the hairpin from the drawing. The hairpin here works as a switch for the circuit. So an electric switch is a device which can start or stop the working of an electrical device without disturbing its connections. देखिए आपको 2 ड्राइंग पिन्स लेनी है और थर्मोकॉल शीट पे इस तरह से फिक्स करनी है, ओके। एंड जो डिस्टेंस है पिन्स के बीच का वो कम होना चाहिए जो हेयर पिन का लेंथ है उससे, ओके। अब आपने बल्ब कनेक्ट करना है बल्ब टर्मिनल को एक ड्राइंग पिन से वायर के साथ, ओके। एंड जो दूसरी पिन है उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अनदर पीस ऑफ वायर से, जिस तरह से जैसे आपको इस तरह में दिखाया गया, राइट। अब आप क्या करेंगे, हेयर पिन को अटैच करेंगे आप टू द वन ऑफ द ड्राइंग पिन्स, और इस तरह से करना है कि इसको इजीली मूव किया जा सके, है ना। जैसे आप हेयर पिन को टच करते हैं दूसरे ड्राइंग पिन के साथ तो बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाएगा, ओके। एंड जो बल्ब है वो लाइट होना बंद हो जाएगा जैसे आप हेयर पिन को रिमूव करते हैं ड्राइंग पिन से, यानी कि जैसे ही आप इसको इसमें टच करेंगे ये बल्ब ग्लो करेगा, जैसे इसे हटाएंगे रिमूव कर देंगे वो ग्लो करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे जो हेयर पिन है वो एक्चुअली एक स्विच की तरह काम कर रही है सर्किट के लिए। तो इलेक्ट्रिक स्विच एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में क्या कर सकता है, उसकी वर्किंग को स्टार्ट या स्टॉप कर सकता है बिना उसके कनेक्शंस को डिस्टर्ब किए। इलेक्ट्रिक फ्यूज, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? A fuse is a safety device used in homes and offices. It is placed in an electric circuit to control the amount of current flowing through it. It is used for protecting the circuits from short circuiting or overloading of the circuit. It consists of a thin copper wire placed in an electric circuit that melts easily when heated. If excess current flows through a device, the fuse wire melts and breaks the circuit. Thus, it protects the appliance from any damage. फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो ऑफिसेज और होम्स में यूज़ किया जाता है। इसको प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में जिससे कि जो अमाउंट है करंट जो फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है सर्किट को, या ओवरलोडिंग जब हो जाती है सर्किट उससे प्रोटेक्ट करता है। इसमें थिन कॉपर वायर होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में प्लेस की जाती है जो इजीली मेल्ट हो जाती है जैसे हीट होगा। अगर एक्सेस करंट फ्लो करेगा इस डिवाइस के अंदर तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी और सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इससे अप्लायंस जो है किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट हो जाएगा। Electric torch. A torch is a portable electric device which uses 2 or more cells to light up a small bulb. Torch आप सभी ने देखा होगा जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का यूज़ करते हैं। इसमें एक छोटा सा बल्ब है उसको लाइट अप करने के लिए। A torch is made up of a cylindrical cover which can be either metallic or non-metallic. The bottom of the cover has a spring attached to a metallic wire. The spring helps in keeping the cells in place. The metallic wire is attached to a switch which is further attached to the negative terminal of the bulb holder. The positive end of the holder is connected to the positive terminal of the cell. Inside a torch, there is a battery of dry cells. A switch system which allows to turn the torch on or off, and a bulb placed at the center of a conical reflector which forwards the light emitted by the bulb. There is a lens in front of the bulb which protects the bulb and the reflector. ओके, टॉर्च जो है आपका एक सिलिंड्रिकल कवर से बना होता है जो कि आपका मेटालिक या नॉन मेटालिक दोनों हो सकता है। जो बॉटम होता है कवर में इसमें एक स्प्रिंग अटैच होता है मेटालिक वायर के साथ। स्प्रिंग जो है वो सेल्स को उनकी जगह पे रखने में हेल्प करता है। मेटालिक जो वायर है वो अटैच होती है स्विच के साथ जो कि फर्दर अटैच होती है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बल्ब होल्डर। तो जो पॉजिटिव एंड होता है होल्डर का वो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। टॉर्च के अंदर एक बैटरी होती है ड्राई सेल्स की, एक स्विच सिस्टम होता है जो ऑन एंड ऑफ करता है उसमें बल्ब को, ओके। एंड एक लेंस होता है बल्ब के फ्रंट में जो कि बल्ब को प्रोटेक्ट करता है और रिफ्लेक्टर को प्रोटेक्ट करता है। The dry cells inside the torch act as a source of electricity. The cells are connected through a switch to the bulb. When we switch on the torch, the circuit becomes complete and the bulb glows. When the switch is in the off position, the circuit is incomplete or broken, because of which current cannot flow through the circuit and the bulb does not glow. The reflector focuses the light into a narrow beam. तो जो ड्राई सेल्स होते हैं टॉर्च के अंदर वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करते हैं। सेल्स कनेक्टेड होते हैं स्विच के थ्रू, ओके। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, बल्ब ग्लो करता है। जब उसे ऑफ करेंगे तो सर्किट इनकम्प्लीट या ब्रेक हो जाएगा, तो जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. Materials which allow electric current to pass through them are called conductors of electricity. All the metals are good conductors of electricity. The best conductor is silver. The electric wires are made of copper and aluminium because both metals are good conductors. Metals like iron, steel, mercury, gold, etc. and metal alloys such as steel, brass, bronze, etc. are all conductors of electricity. Graphite is also a good conductor of electricity.
Materials like wood, rubber, plastic, glass, air, paper, wax, jute, thermocol, most gases and clothes do not allow electricity to flow through them. They are called non-conductors or insulators. Similarly, pure water, for example, distilled water is also a poor conductor of electricity. But if the water contains some salts, for example, tap water or salt water, it becomes a good conductor of electricity. See, conductors आपके क्या होते हैं? देखिए, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, उन्हें कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब जितने भी मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है और इनमें बेस्ट कंडक्टर है आपका सिल्वर. ओके, इलेक्ट्रिक वायर्स आपको पता है कॉपर, एल्यूमिनियम से बने होते हैं क्योंकि मेटल्स आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं, है ना. इसके अलावा आपके जैसे कुछ अलॉयज हैं, स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये भी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ग्रेफाइट जो कि आपका नॉन मेटल है, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देते हैं उन्हें कहते हैं हम नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स, जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक, एयर, वैक्स, जूट. प्योर वाटर, अगर हम डिस्टिल वाटर की बात करें तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. लेकिन अगर वाटर में कुछ सॉल्ट हो, जैसे कि टैप वाटर हो या सॉल्ट वाटर हो, आप डिस्टिल वाटर में सॉल्ट वाटर डाल दीजिए तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा. Our body is a good conductor of electricity, so we would get an electric shock if we handle any of these devices carelessly. Therefore, we have plastic covering on wires, plugs and switches to prevent electric shock to the user. हमारी बॉडी जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसीलिए अगर हम किसी भी डिवाइस को केयरलेसली हैंडल करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. इसीलिए आपने देखा होगा जो वायर्स या प्लग्स या स्विचेस होते हैं इनकी प्लास्टिक कवरिंग की रहती है जिससे कि यूजर को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे. Activity 4. To test whether a material is a conductor or an insulator, arrange a torch bulb and electric cell as shown in the figure, then connect the negative terminal of the bulb to the negative terminal of the cell using a wire and the positive terminal of the bulb to another wire. Similarly, connect the positive terminal of the cell to a wire. Use the open ends of both these wires to connect to a key. Check if the bulb glows. आपको एक टॉर्च बल्ब अरेंज करना है और एक इलेक्ट्रिक सेल जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है. ठीक है, अब क्या करना है, आपने जो नेगेटिव टर्मिनल है बल्ब का उसको कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल वायर के यूज़ करते हुए, एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल है बल्ब का उसको दूसरे वायर के साथ अटैच करना है. सिमिलरली आपको जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का वो कनेक्ट करना है वायर के साथ, और आपको जो ओपन एंड्स है दोनों वायर्स के वो आपको क्या करने हैं, उनको यूज़ करने हैं की के साथ कनेक्ट करने के लिए. अब आपने चेक करना है कि बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता है. Repeat the experiment with other materials instead of the key and observe whether the bulb glows or not. Record your observation in the table. देखिए की के केस में तो आपका बल्ब ग्लो करेगा. अब आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं, इनको आप खुद यूज करके बताएंगे whether the bulb will glow or not. The bulb glows when materials such as key and safety pin are connected to the wire. These materials are conductors of electricity. The bulb does not glow when materials such as pencil, paper, wooden block, eraser, etc. are connected to the wire. They are called insulators. This device, which is used to check whether an object is a conductor or an insulator, is called a conduction tester. तो देखिए बल्ब आपका ग्लो करेगा जब की या सेफ्टी पिन को कनेक्ट किया जाता है वायर के साथ. लेकिन अगर हम जैसे कि अगर हम पेंसिल, पेपर या वुडन ब्लॉक इरेजर का यूज़ करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये इंसुलेटर्स हैं. तो ये जो डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट कंडक्टर है या इंसुलेटर है, उसे कहा जाता है कंडक्शन टेस्टर. Electric shock and safety. Electricity is very useful to us, but we should handle it carefully to avoid accidents. Electric shock can be very dangerous, and in some cases, it might prove fatal too. It is because a human body is a good conductor of electricity, and it experiences electric shock when high voltage electricity passes through it. It can cause various nervous disorders and even lead to death. Here are some important safety measures that you should keep in mind while handling electric equipment. अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए यूज़फुल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे लिए डेंजरस भी है अगर आप इसे केयरलेसली हैंडल करते हैं तो. ओके, तो क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है. तो ये नर्वस डिसऑर्डर के लिए आपका खतरा हो सकता है और कई बार डेथ भी हो जाती है इससे. तो कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए. Never put fingers or other object inside electric sockets. Do not put any metal object inside electrical appliance such as toasters. Never pull a plug out of socket by its cord. Stay away from substations and power lines. देखिए कभी भी अपने फिंगर्स को या दूसरे ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर ना डालें.
किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर ना डालें, जैसे कि टोस्टर है आपका, कभी भी प्लग को उसके कॉर्ड से आप उसको प्लग आउट ना करें, उसको पुल ना करें। और आपको हमेशा पावर लाइन, सब स्टेशंस, इनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। मेक श्योर यू वेयर रबर स्लीपर्स while handling or turning on and off electric gadgets. Keep your hands dry while handling electrical equipment because moisture increases conductivity and you may get shock. देखिए, हमेशा ही रबर स्लीपर्स आप पहने जब कभी भी आप इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को हैंडल कर रहे हैं, ऑन या ऑफ उसे कर रहे हैं। हैंड्स अपने ड्राई रखें, क्योंकि गीले अगर हाथों से आपने स्विचेस को ऑन एंड ऑफ किया तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। Do not use electrical socket at your home for conducting any experiments. Do not climb on power poles. Never fly kites near power lines. Stay away from broken or fallen power lines. Never touch or climb trees that are near power lines. Never touch big metal transformer boxes with warning signs. कभी भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स का यूज़ नहीं करें अपने घर में किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। पावर पोल्स पे ना चढ़ें, पावर लाइंस के पास कभी भी पतंग ना उड़ाएं। हमेशा कोई भी आपका जो पावर लाइंस जो आपका टूटा हुआ है या गिरा हुआ है उससे आप दूरी बना के रखें। किसी भी पेड़ को टच ना करें या उस पर क्लाइंब ना करें जो पावर लाइन के पास हो। कभी भी बहुत बड़ा या मेटल ट्रांसफार्मर जो बॉक्स है जिसमें वार्निंग साइंस हैं उसे कभी भी टच ना करें। Learning outcomes. Flow of electric current is known as electricity. It is a form of energy produced in power stations. Dry cells, button cells, and solar cells are some examples of electric cells. An electric bulb is a device which gives light when electricity is passed through its terminals. Its filaments are made of tungsten. Electric current flows when terminals of electric cell are connected to each other. Electric switches are used to switch on and off the electric circuits. Conductors allow current to flow through them. Insulators do not allow current to flow through them. An electric cell is a source of electric current. The path through which an electric current flows is called a circuit. A switch is a device used to complete or break the circuit. A fuse is a protective device placed in an electric circuit to control the amount of current flowing through it. Electricity is very useful to us, but we should handle it carefully to avoid accidents. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।